Hello, everyone. Welcome back to the class. And in the previous section, we have done the Rajasthan plains and Punjab plains. And today we are going to start with the Ganga plains. So we are doing the great northern plains of India. And we have started the division of northern plain on the basis of region. And in the previous section, we studied about Rajasthan plain and Punjab plains. And today we are going to start with the Ganga plains. Okay, so let's start. Ganga plain forms the largest and most important part of northern plains of India. Right, and these plains are formed by the depositional work of the Ganga River. Also, its tributaries. Right, and this region is extremely fertile. It is densely populated and agriculturally prosperous. And due to its economic and cultural importance, the Ganga Plains are often called as the heartland of India. So they are known as heartland of India. Ganga Plains are called as the heartland of India. So if we talk about the location of Ganga Plains, so this is Ganga Plains, right? So it extends from Delhi and western UP in the western side and to West Bengal in the eastern side. ओके सो कौन सी जगह कौन सी स्टेट से कवर कर रहा है गंगा प्लेन सो इट इज कवरिंग द पार्शियल पार्ट ऑफ दिल्ली यूपी बिहार some parts of Jharkhand and at last West Bengal. So states covered under Ganga Plains are Delhi, UP, Bihar, Jharkhand and West Bengal. Now let's talk about the formation of Ganga Plains. How they were formed. So they are formed by the deposition of alluvium brought by the rivers descending from the Himalayas. ठीक है sediments जो हैं वो accumulate हो रहे हैं in the 4D south of the Himalayas and over million of years thick layer of alluvium is created into fertile plains. So some of the major rivers of Ganga plain और उसमें अगर हम main river की बात करें तो it is Ganga. ठीक है गंगा रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इट इज घाघरा गंडक कोसी रामगंगा ठीक है अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें यमुना and also some tributaries of Yamuna also are the part of the rivers that are that bring sediments in the Ganga plains and these are Son River, Chambal River, Betwa River and Ken River. So these are the peninsular tributaries of Ganga which are participating in the formation of Ganga plains. So Ganga plain का slope है it is towards east. इसका origin कैसा है गंगा प्लेन्स आर डिपोजिशनल प्लेन्स और ड्रेनेज पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है इट इज ऑल्सो डेंट्रियाटिक पैटर्न और यहाँ पे जो सॉइल देखने को मिलेगा इट इज एलुवियम सॉइल एलुवियल सॉइल विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल नाउ these Ganga plains are further divided into 4 divisions. The first one is अपर गंगा प्लेन जिसे हम रोहिलखंड प्लेन्स भी बोलते हैं नेक्स्ट वन इज मिडिल गंगा प्लेन या फिर अवध प्लेन बोल लो थर्ड वन इज लोअर गंगा प्लेन और बिहार प्लेन्स and the fourth one is coastal plains.
ओके, चलो अब इसके बारे में जानते हैं। सो दिस गंगा, द अपर गंगा प्लेन कौन सा पार्ट कवर कर रहा है? तो वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है दैट इज कमिंग अंडर द अपर गंगा प्लेन। अवध प्लेन में इट इज ईस्ट यूपी, बिहार प्लेन में बिहार एंड वेस्ट बंगाल, एंड इफ वी टॉक अबाउट कोस्टल प्लेन तो जो ये सुंदरबन वाला एरिया है दैट इज द कोस्टल प्लेन्स ऑफ गंगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं रेनफॉल पैटर्न। तो जो इस पार्ट पे जो रेनफॉल है इट इज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। जो मैक्सिमम रेनफॉल ये एरिया रिसीव करता है इट इज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, और ये जो रेन है इट डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो जो रेनफॉल है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम, फिर उसके बाद और कम। सो जो रेनफॉल पैटर्न है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, जो लोअर गंगा प्लेन है वो ज्यादा रेनफॉल रिसीव करेगा एज कंपेयर टू अपर गंगा प्लेन। ठीक है, अच्छा अब सेम केस क्या हो रहा है पॉपुलेशन के साथ भी। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है इस एरिया में, जो पॉपुलेशन है इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है जी, अब अगर पॉपुलेशन ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज हो रही है तो एग्रीकल्चर के लिए ये चीज क्या होगी? उल्टी होगी। मतलब एग्रीकल्चर अगर हम देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वाई? बिकॉज पॉपुलेशन अगर कम है तो लैंड एरिया ज्यादा है, लैंड एरिया ज्यादा है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ज्यादा होंगी। ठीक है, अगर हमें इसे कंपेयर करना होगा, जैसे हमने तीन चीजें ली, दैट इज रेनफॉल, वी हैव पॉपुलेशन, देन इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो ईस्टर्न साइड में ज्यादा रेनफॉल है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड, पॉपुलेशन ईस्टर्न साइड में ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड, और एग्रीकल्चर में इस केस में क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर इज मैक्सिमम इन द वेस्टर्न साइड एज कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड। इफ यू टॉक अबाउट पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, सो in spite of less rainfall, the upper Ganga maintain and increase the agriculture productivity by canal irrigation, the area of implementation of green revolution, and also the large side of land holding. ठीक है, so in lower Ganga plains there is fragmentation of lands and this reduces per capita land holding in that area. And also the majority of the farmers are marginal and small farmers, and this compromises the agricultural activities in the eastern side or lower Ganga plains. Okay, so this was all about the Ganga plains. Now it is Assam plains. Assam plains are also known as Brahmaputra plains, and they form the easternmost part of the northern plains of India, and these plains are formed mainly by the depositional work of the Brahmaputra river and its tributaries. And these plains are famous for fertile alluvial soil for the tea cultivation, riverine island, rich biodiversity, and frequent floods. So Assam plains represent a unique geographical region because they are narrow plains surrounded by hills and mountains on almost all the sides. Okay, so if we talk about the location of Assam plains, so they are mainly located in the state of Assam. अगर हम इसके नॉर्थ में देखें तो इसके नॉर्थ में देखें we'll see the eastern Himalayas and Arunachal hills. In its south there is Meghalaya plateaus, Karbi Anglong, and the eastern side there is Patkai hills, and in the western side we'll see the West Bengal plains. And अगर इनकी लेंथ की बात करें तो असम प्लेन्स extend about 720 kilometer in length,
और विड्थ जो होगी इसकी इट इज अराउंड 80 to 100 kilometer. So these plains are comparatively narrower as compared to the Ganga plains. Now the formation of असम प्लेन्स. सो ये जो असम प्लेन्स हैं ये फॉर्म्ड हुए हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स जो कि ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज लेके आ रहे हैं विद इट्स फ्लो एंड इट इज़ द कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन because it is caused by heavy rainfall and river flow, and the river carries enormous quantity of silt from the Himalayas. Now if we talk about ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत में नियर द कैलाश रेंजेस, और वहां पे इसको सांगपो बोले जाते हैं. एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड इट फ्लोज इनटू असम. नाउ ब्रह्मपुत्र जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. इट इज़ अ पेरिनियल रिवर और ये कैरी करती है अपने साथ ह्यूज सेडिमेंट लोड एंड इट इज़ हाईली ब्रेडेड चैनल. और इसके साथ हम फ्रीक्वेंट फ्लड्स देखने को देख सकते हैं उस एरिया में. इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही हैं एंड इट इज़ हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ असम प्लेन्स. नाउ अगर हम फिजियोग्राफिक फीचर देखें असम प्लेन्स का तो दीज आर फ्लड प्लेन्स. वाई? बिकॉज दीज प्लेन कंसिस्ट ऑफ रिसेंट एलुवियल डिपॉजिट एंड फर्टाइल फ्लड प्लेन्स. यहाँ पे रिवराइन आइलैंड देखने को भी मिलेंगे. ठीक है, रिवराइन आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे एंड उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड इज माजुली आइलैंड, which is one of the world's largest inhabited river island, and it is an important cultural center of Assam. So this is Majuli Island and it is formed by the shifting of channels of Brahmaputra river, and the size of this island is getting decreased day by day because of the erosional activities, right? So अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है इट इज़ वेरी ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. वाई सो? बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल, वार्म समर, माइल्ड विंटर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, और असम जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल रिसीव करता है एनुअली. अगेन अगर सॉइल की बात करें तो यहाँ पे भी जो सॉइल है इट इज़ एलुवियल सॉइल. ठीक है जी. सो एग्रीकल्चर जो है इट इज़ द बैकबोन ऑफ असम प्लेन्स. पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर इन दिस एरिया. और अगर मेजर क्रॉप्स की हम बात करें तो यहाँ पे हमें राइस, मेज और पल्सेस देखने को मिलती हैं. वहीं अगर हम कैश क्रॉप की बात करें तो हाई अमाउंट ऑफ टी कल्टीवेशन देखने को मिलेगी, जूट कल्टीवेशन एंड मस्टर्ड कल्टीवेशन. तो ये जो असम प्लेन्स हैं दे आर वर्ल्ड फेमस फॉर असम टी. ठीक है, एंड दिस प्लेन सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी. ठीक है जी. यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क भी हैं जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द असम प्लेन्स. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हम कवर कर चुके हैं राजस्थान प्लेन्स. राजस्थान प्लेन्स में हमने वेस्टर्न राजस्थान प्लेन्स के बारे में पढ़ा जिसको मरुस्थली भी कहा जाता है, और ईस्टर्न राजस्थान प्लेन्स के बारे में भी पढ़ा. पंजाब में हमने दोआब के बारे में पढ़ा, चोस के बारे में पढ़ा, एंड कौन कौन सा एरिया कवर कर रहा है पंजाब, कौन कौन सी रिवर जो हैं आर द पार्ट ऑफ पंजाब प्लेन्स. गंगा प्लेन्स में हमने अपर गंगा प्लेन के बारे में पढ़ा, मिडिल गंगा प्लेन के बारे में पढ़ा, लोअर गंगा प्लेन के बारे में पढ़ा, एंड एट लास्ट कोस्टल गंगा प्लेन के बारे में पढ़ा. ब्रह्मपुत्र में हमने देखा कि जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है इट इज मोस्टली कवर्ड अंडर विच स्टेट, दैट इज असम स्टेट. ठीक है जी. यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है मेकिंग ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यहाँ से गंगा रिवर आ रही है मेकिंग गंगा प्लेन्स, और यहाँ से इट इज इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी विच आर मेकिंग पंजाब प्लेन्स. अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर रिवर है विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अरावली इज द लूनी रिवर एंड इट इज इमर्जिंग इनटू रन ऑफ कच्छ एट लास्ट. राइट. सो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर कर लिया है, उसकी डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ
region. We have done this. Now let's move towards the important physiographic division of the northern plains of India, which are based on the nature and the age of alluvial deposit. So northern plains are not completely uniform, and due to river deposition and relief variation, different belts have developed from the foothills of Himalayas towards the south. Plains are further divided into four physiographic belt, which are Bhabar. After that comes Terai. Terai के बाद it is Bangar, and after Bangar it is Khadar. ठीक है, तो ये जो डिवीजन है ये अरेंज्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एंड दिस भाबर, ये जो भाबर है, इट इज बिगिनिंग फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स. ठीक है, तो जैसे अब यहाँ देख सकते हैं, दीज आर द शिवालिक्स, और उसी के फुटहिल्स में हम देख रहे हैं भाबर बेल्ट. देन कम्स द तेराई एंड द बंगार, एंड आफ्टर दैट खादर. ठीक है, तो हम एक एक करके इन बेल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द northernmost belt, which is Bhabar. अब Bhabar जो है, it is the northernmost belt of the northern plains, and it lies immediately south of Shivalik hills, and it is a narrow strip extended from कहाँ से कहाँ तक, Jammu region to Assam. Jammu in the west and Assam in the east. Now, if we talk about the width of Babar, so it is near about 8 to 16 kilometer. और ये जो region है, it is formed by the deposition of porous materials such as pebbles. We can see the pebbles, gravel, stones, massive boulders, and when the rivers emerge from the steep mountain slopes. ठीक है, यहाँ से जब rivers नीचे आ रही हैं, एंड वेन दे रीच टू द बाबर बेल्ट, तो यहाँ पे आके जो रिवर्स हैं वो क्या हो रही हैं, डिसअपेयर हो रही हैं. ठीक है, तो जो भी हिमालयन रिवर्स हैं वो बाबर बेल्ट पे आके क्या हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं. ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे सरफेस वाटर कम है, तो इस एरिया में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो भी अच्छे से डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट भाबर. एंड भाबर के साउथ में देयर इज तेराई रीजन, विच इज अ मार्शी स्वैम्पी बेल्ट. वाई सो? बिकॉज द रिवर्स दैट डिसअपियर्ड अंडरग्राउंड इन द भाबर रीअपियर ऑन द सरफेस when they reach to Terai belt. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर लॉक्ड और ह्यूमिड रहता है थ्रू आउट द एयर. एंड हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ये जो रीजन था, इट वॉज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, टॉल ग्रासेस एंड रिच वाइल्ड लाइफ, एंड इट वॉज वंस कंसिडर्ड अनहेल्दी फॉर ह्यूमन हैबिटेशन ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक मलेरिया. ठीक है, अब ये जो रीजन है, तेराई रीजन है, इट इज एक्सट्रीमली फर्टाइल बिकॉज इट कंटेन्स फाइन एलुवियल deposits, and after large scale of reclamation, drainage and deforestation, ये जो area है, now it is became highly suitable for agriculture. Today, crops like rice, sugarcane, ठीक है, wheat and maize, they are cultivated extensively in the Terai region. और ये जो area है, it is ecologically significant because it supports rich biodiversity and several protected areas. अब यहाँ पे कुछ important national parks भी हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया और दुधवा नेशनल पार्क हो गया, and they are located in the Terai belt. तो ये जो Terai region है, it has both agriculture and ecological importance. ठीक है, और इसका जो characteristic फीचर है कि जो रिवर्स हैं री एमर्ज हो रही हैं इन दिस रीजन, और यहाँ पे जो ये रीजन है, इट इज वेरी मार्शी एंड स्वाम्पी. ठीक है, नाउ लेट्स गो towards the south of Terai and we'll see the Bhangar. Bhangar means older alluvium of the northern plains. So it is the part of plain that is located slightly above the floodplain. So floods usually do not reach here every year. So soil in Bhangar are deposited by the rivers a long time ago, which is why it is called the old alluvium. ठीक है, और ये इतना fertile भी नहीं होता है. ठीक है, so fertility of Bhangar is good, but it is less fertile than Khadar.
ठीक है। क्यों खादर से, क्यों? क्योंकि खादर में जो है अभी फ्रेश एल्यूवियम डिपॉजिट हो रहा है एवरी ईयर। ठीक है। अगर हम कुछ मेन फीचर्स की बात करें भंगार की, तो इट हैज ओल्ड एल्यूवियम, इट इज लोकेटेड ऑन हायर लैंड एंड इट इज लेस अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, एंड ऑल्सो इट कंटेन्स द कंकर नोड्यूल्स। ठीक है। और यहाँ की जो फर्टिलिटी है वो क्या है, मॉडरेट है। क्रॉप्स जो है वो यहाँ ग्रो किए जाते हैं लाइक व्हीट, शुगर केन एंड पल्सेस। ठीक है। अगर हमें याद करना है, सो अगर हमें याद क्या करना है, सो बंगार इज द ओल्ड एलुवियम ऑन हायर प्लेन्स। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स खादर। अगर हम खादर की बात करें तो खादर मीन्स द न्यू एलुवियम एंड दे आर डिपॉजिटेड बाय रिवर्स इन द फ्लड प्लेन्स। सो इट इज फाउंड इन द लो लाइंग एरियाज। ठीक है। लो लाइंग एरियाज में ये फाउंड आउट होते हैं। ठीक है। वेयर फ्लड्स अकर ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और ड्यूरिंग फ्लड्स जो रिवर्स हैं वो अपने साथ फ्रेश लेयर लाती हैं सिल्ट, क्ले और फाइन सैंड्स की, एंड द दीज फ्रेश डिपॉजिटेड मेक्स द खादर सॉइल वेरी फर्टाइल। ठीक है। जिसका जो सॉइल है इट इज वेरी fertile, and because of the soil is renewed every year, because the soil is renewed every year, तो जो खादर है it is considered the most fertile part of the northern plains। ठीक है। तो यहाँ पे जो soil है it is new alluvial soil, they are found near river floods and they are renewed every year by the floods, and the soil fertility is very हाई। यहाँ पे फाइन टेक्सचर सॉइल देखने को मिलेगा, और जो क्रॉप्स यहाँ ग्रो हो रही है इट इज राइस, व्हीट, शुगर केन एंड जूट। ठीक है। सो खादर आर द न्यू एलुवियम डिपॉजिट इन फ्लड प्लेन्स। ठीक है। सो हमने यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखा कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं दे आर द लाइफ लाइन्स ऑफ इंडिया बिकॉज दे सपोर्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड डेंस ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है। और ये कैसे फॉर्म हुए हैं, दे आर फॉर्म बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये जो प्लेन्स हैं दे आर अमंग द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने started from the Punjab, Haryana, Rajasthan plains in the west to the Assam in the east. नॉर्दर्न प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिली है। हमने यहाँ पे फीचर्स लाइक भाबर, तराई, भंगार, खादर के बारे में पढ़ा। तो ये जो प्लेन्स हैं दे आर नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया ड्यू टू देयर रिच एलुवियल सॉइल, abundant water supply and favorable climate. So at the same time, they also face challenges such as flood, soil degradation, pollution, and population pressure. So overall, the northern plains play a vital role in economic, cultural, and agricultural development of India, and they remain one of the most important physiographic division for the study of Indian geography. So after these are the great northern plains of India, and the river associated are Indus River, Ganga River and Brahmaputra. We've done the Rajasthan plains, we've done the Punjab Haryana plains, Ganga plains and Brahmaputra plains. Okay, so that's all for today's class, today's topic. I'll come with the next topic and we are going to start with the Peninsular Plateaus. And till then, take care. Bye-bye.